السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے تجوید و قرأت کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے کل کے سبق میں یہ صفات لازمہ کی اقسام کمپلیٹ جو 10 ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ ایک دفعہ ہم ذرا پھر پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ہے صفات کا بیان۔ مخارج کے اندر ہم نے پڑھا تھا تجوید کی تعریف کے اندر کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ صاحب جمال القرآن جو کہ سب سے زیادہ بر صغیر میں تجوید کی ابتدائی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے تجوید کی تعریف میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ تجوید کا معنی ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ما جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے، یعنی یہ علم اتنا ہی ہے کہ مخارج اور صفات کے اوپر بندہ کمال حاصل کر لے، مخارج اور صفات کے اوپر بندہ کمال حاصل کر لے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مخارج اور صفات جب تک بندہ ان دو چیزوں سے واقف نہ ہو اس وقت تک بندہ مجود نہیں بن سکتا۔ ایک ہوتا ہے قاری، ایک ہوتا ہے مجود۔ مجود کے لیے مخارج اور صفات سے واقفیت اور مہارت ضروری ہے، اور قاری مقری کے لیے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے، جن میں علم تجوید یعنی مخارج اور صفات، نمبر 2 علم اوقاف، نمبر 3 علم رسم الخط، اور نمبر 4 علم قرات اختلاف روایات۔ ان 4 علموں کو جاننے کے بعد بندہ قاری کہلوانے کا مستحق ہے۔ اب آئیے، مخارج تو آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے اور ماشاءاللہ ہم نے بھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے صفات۔ آج ہم دوسرا حصہ صفات کا بیان، اس کی مختصر تعریف یہ ہے، صفات صفت کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی حروف کی وہ کیفیت اور حالت جسے حرف کا پر یا باریک ہونا، پست یا بلند ہونا، سخت یا نرم ہونا وغیرہ معلوم ہو۔ جو دوست کل نہیں تھے یا ان کو سبق مکمل نہیں سمجھ آیا، انہوں نے یہاں سے یہ اتنا ضرور یاد کرنا ہے۔ زبانی پوچھا جائے گا صفات کا معنی کیا ہے، بھائی صفات کی تعریف کریں، تو وہ کہیں گے صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی حروف کی وہ کیفیت یا حالت جسے حرف کا پر یا باریک وغیرہ، پست یا بلند ہونا، سخت یا نرم وغیرہ ہونا معلوم ہو۔ یہاں تک ضرور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے چلیں گے۔ پھر صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ نمبر 1، صفات عارضہ نمبر 2۔ یعنی پہلے ہے صفت اس کی جمع ہے صفات۔ صفات کی 2 قسمیں آگے، لازمہ اور عارضہ۔ صفات لازمہ کی تعریف پھر آپ نے یہی یاد کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا نا صفات کی تعریف۔ اب صفات لازمہ کی تعریف۔ صفات لازمہ ایسی صفات جو حروف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں۔ جس طرح حروف کو مخرج سے نکالنا ضروری ہے، اسی طرح صفات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کس طرح یاد کرنا ہے؟ صفات لازمہ کہتے ہیں ایسی صفات جو حروف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، ان کے ادا نہ ہونے سے حرف نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہو یا دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اور نام بھی ہیں صفات لازمہ کے دوسرے نام، ممیزہ، مقومہ۔ لازمہ، ممیزہ، مقومہ۔ اب آئیے صفات عارضہ۔ لازمہ صفات کی 2 قسمیں تھی، لازمہ اور عارضہ۔
आरजा की आपने, लाजमा की आपने तारीफ पढ़ ली है। लाजमा की आपने तारीफ पढ़ ली है। अब आइए आरजा पढ़ते हैं। सिफात आरजा ऐसी सिफात जो हरूफ में हमेशा नहीं होती, कभी होती हैं कभी नहीं होती। ये देखिए, कभी पाई जाती हैं कभी नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक हरूफ के खूबसूरती के साथ होता है। तो ये आपने पढ़ ली है सिफात लाजमा। सिफात की दो किस्में पढ़ ली हैं। अब आते हैं हम सिफात लाजमा। हाँ जी, सिफात लाजमा की दो अकसाम। सिफात लाजमा की दो अकसाम। अब दोबारा सुने, मैं आपको जुबानी बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सिफात सिफ्त की जमा है, जिसका माना है हरूफ की वो सिफात कि जिनके अदा ना करने से। सिफात सिफ्त की जमा है, और इनका मतलब यह है कि ऐसी सिफात जिनकी अदायगी के बगैर, यानी जिनकी वजह से हरूफ का पुर या बारीक होना, लंबा या छोटा होना, सख्त या नरम होना मालूम हो। इसकी दो अकसाम हैं। सिफात की दो अकसाम है, सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। सिफात लाजिमा कहते हैं जो हरूफ में हमेशा पाई जाएं, और सिफात आरिजा कहते हैं जो कभी हों और कभी ना हों। और सिफात लाजिमा की अब दो अकसाम हैं। सिफात लाजिमा की दो अकसाम हैं, सिफात लाजिमा मुतजादा, सिफात लाजिमा गैर मुतजादा। सिफात लाजिमा मुतजादा जो आपस में एक दूसरे की जिद हों, सिफात लाजिमा गैर मुतजादा जो आपस में एक दूसरे की जिद ना हों। सिफात लाजिमा मुतजादा, अच्छा, सिफात लाजिमा मुतजादा, ये अब आ रहा है। देखिए, ये 10 सिफतें हैं, जैसे कि कल मैंने आपको तफसील पढ़ाई थी, फिर याद कर लें। हमस की जिद जहर है, शिद्दत की जिद रिखावत है, इस्तिला की जिद इस्तिफाल है, इतबाक की जिद इनफिताह है, इज़लाक की जिद इसमात है। यहाँ पे एक चीज बतानी है सब सारे दोस्तों को कि अगर कोई दोस्त स्क्रीन देखना चाहता है तो वो बड़ी स्क्रीन देख सकता है। अगर कोई आपकी तस्वीर पे टच करेगा तो आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी तरह अगर दोबारा टच करेगा सबक को तो सबक बड़ा हो जाएगा। देखिए, जैसे ये सबक बड़ा करना है तो ये सबक बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, देखिए, हमने वो 10 सिफात जो है ना, अब यहाँ पे उनकी तारीफ के साथ, कल मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर देख लें। ये हमस है, ये सिफत का नाम है, ये इसका लफ्जी माना है, ये सिफात का अमल है, और ये कौन से हरूफ इस सिफत में पाई जाते हैं। ये हमस है, ये जहर है, ये आपस में एक दूसरे के मुकाबल हैं, जिद हैं। हमस का माना पस्ती या जोफ है, तो इसकी जिद का माना क्या होगा? पस्ती की जिद है बुलंदी, जोफ का माना है कुव्वत। यहाँ पे है, देखें, यहाँ पर भी वो जिद सामने आएगी। अदायगी के वक्त आवाज में जोफ और पस्ती इतनी कि सांस जारी रहे। जहर में अदायगी के वक्त आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी कि सांस बंद हो जाए। यानी यहाँ आवाज में जोफ और पस्ती है, यहाँ आवाज में बुलंदी और कुव्वत है, यहाँ सांस जारी था और यहाँ सांस बंद है। अब ये आपस में एक दूसरे की जिद हो गई। अच्छा, हमस में ये 10 हरफ पाए जाते हैं। फहस्सहु शख्सुन सकत। अगर ये अलग-अलग हम लिखते, यकीनन आपके लिए याद करना मुश्किल था। अब आप एक लफ्ज याद कर लेंगे तो इनके अलावा 29 हरूफ में से ये 10 निकाल लेंगे तो बाकी 19 जो हैं वो मजहूरा है। फहस्सहु शख्सुन सकत महमूसा हो गए, और मजहूरा कौन से हुए? महमूसा के सिवा तमाम हरूफ। अब आगे चलिए, ये देखिए, शिद्दत और रिखावत। शिद्दत और रिखावत, हमस और जहर में किस चीज का ताल्लुक था? आवाज में जोफ या आवाज में कुव्वत, सांस का जारी रहना या सांस का बंद होना, ये आपने याद रखना है। हमस और जहर में क्या बात थी कि आवाज में जोफ या कुव्वत, आवाज में पस्ती या बुलंदी, सांस का जारी रहना या सांस का बंद होना।
لیکن شدت میں بلندی اور قوت نہیں ہے، سختی اور قوت ہے۔ دیکھیے ہر بلند چیز قوت والی نہیں ہوتی، اور ہر پست چیز جو ہے وہ نرم بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہوں، سختی ہو، قوت ہو، آواز بلند ہو، آہستہ ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے، یہاں تھا سانس رک جائے، جہر میں کیا تھا؟ سانس بند ہو جائے، شدت میں کیا ہے؟ آواز رک جائے۔ جیسے دیکھیے اک، یہاں پہ آواز رک گئی ہے۔ اور رخاوت میں نرمی ہے، یہاں سختی اور قاری قوت۔ صاحب ایک سوال کروں؟ جی جی قاری صاحب ایک سوال کروں چھوٹا سا؟ یہ فحسہ شخص سکت میں کاف ہے، اس پہ تو آواز رک جاتی ہے اگر ہم اک اک، یہ ہاں حمس میں۔ ہاں ہاں، کون بول رہے ہیں؟ میں ذیشان۔ اچھا، وہ ایسے ہے، دیکھیں آواز اس لیے رکتی ہے کہ ہمس میں سانس جاری ہے، کاف اور تا ہے نا، ہمس میں سانس جاری ہے، اور شدت میں بھی یہ کاف اور تا پائی جاتی ہے، تو شدت میں آواز رکے گی۔ اچھا، اگر شدت میں آواز رکے گی اک ات، اچھا اگر یہاں پہ سانس بھی رک جائے، کاف میں اور تا میں سانس بھی رک جائے، یعنی آواز کے ساتھ ہی سانس بھی ٹوٹ جائے، تو پھر کاف میں ہا کی آواز پیدا ہو جائے گی، تا میں بھی ہا کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اک کہہ کر فوراً سانس توڑیں گے نا تو اک ہو جائے گا۔ آپ توڑ کر دیکھیں، بولیں فوراً سانس توڑیں، اک کے اوپر فوراً سانس توڑیں۔ اک، ہاں یہ جی اک آ گیا نا، تا کے اوپر بھی جی سانس توڑیں۔ ات، اس ہا کی آواز سے بچنے کے لیے اس میں سانس کو جاری رکھا گیا ہے، یعنی آواز تو شدت کی وجہ سے بند ہو جائے گی تا میں اور کاف میں، لیکن ہمس کی وجہ سے سانس جب جاری رہے گا تو کاف جو ہے نا یہ وہ کھے کی آواز اور تھے کی آواز سے بچ جائے گی۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، سمجھا گئی بات کی؟ اور یہ صرف دو حرف ہیں فحسہ شخص میں۔ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اچھا جی جی ہاں دیکھیں، شدت اور رخاوت، شدت اور رخاوت، شدت میں آواز رک جائے گی اور رخاوت میں آواز جاری رہے گی۔ یہ دیکھیں آواز جاری رہے گی یہاں، یا ان کی آپس میں یہ ضد یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ آواز رکے گی، یہ کہتی ہے آواز نہیں رکے گی، تو یہ کہتی ہے اچھا یہ حرف میرے ہیں، میں ان میں آواز کو روک لوں گی، تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ان میں آواز روک لوں گی، اور کچھ حروف کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم میں تو نہ پوری طرح رک سکتے ہیں نہ پوری طرح ٹھہر سکتے ہیں، تو ان میں پھر توسط آ جاتی ہے کہ نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ ہی کے سوال پر کہ دیکھیے الف میں ہے رخوت، مثلا آ ما با جتنا چاہے لمبا کریں، آ با آواز جاری ہے، نرم رکھا ہے نا۔ حمزہ میں سختی ہے، آواز رکے گی، ا با تا، ٹھیک ہے؟ یعنی حمزہ اور الف میں ادائیگی میں فرق کیا ہوا کہ الف میں مدیت پیدا ہوگی، حمزہ میں جھٹکے سے آواز بند ہوگی۔ سمجھا گئی بات کی آپ کو؟ کیوں ذیشان صاحب؟ جی 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 قاری صاحب سمجھ آیا۔ یعنی الف اور حمزہ میں فرق کیا ہوا کہ الف میں رخوت ہے، آواز نرم رہے گی، مد کرنا چاہیں جتنی مرضی مد کر سکتے ہیں کیونکہ آواز جاری رہ سکے گی۔ حمزہ میں سختی کی وجہ سے آواز رک جائے گی، تو الف اور حمزہ میں یہاں سے فرق پیدا ہوگا۔ اب عین میں اگر آواز جاری رکھیں گے تو عین الف بن جائے گا، اور اگر آواز کو بند کر دیں گے تو حمزہ بن جائے گا۔ اب عین کو سلامت کس طرح رکھنا ہے کہ عین میں توسط رکھیں گے، نہ تو حمزہ کی طرح آواز رکے اور نہ الف کی طرح آواز جاری رہے، درمیانی کیفیت۔ جس طرح آواز گلے سے گٹی گٹی نکلتی ہے نا، گٹی گٹی، یہ 5 حرفوں میں اس طرح آواز ہے۔ ایک ہے جس طرح آواز کو گلے کو دبایا جائے تو آواز رکتی ہے نا، اس طرح آپ نے ہاتھ سے نہیں دبانا بلکہ اپنے باڈی کے اندر سے گلے کو دبانا ہے۔ مثلا آ آ آ الف تھا اور
हमजा था, तो फिर आइन क्या हुआ, आ। एक तो गले में ले जाना है और एक आवाज को रोकना है। नून में भी ऐसे ही है, अन गलत है, अन भी गलत है, अन। अल गलत है, अल भी गलत है, अल, अम, अर। तो ये हरूफ मुतवस्सिता हो गए। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए हम अब आ गए हैं यहाँ पर, ये बाकी सीखते हैं अब हमारे सामने। इस्तेला और इस्तिफात, ये आपस में एक दूसरे की जिद हैं। इस्तेला का माना है ऊपर की तरफ उठना, जुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद हो ताकि ऊपर पुर पड़े जाए। ये आपने इनकी इसी तरह याद करनी है। मैं खसूसी तौर पे ये अब्दुल मन्नान को कह रहा हूँ कि आपने सारी सिफात जिस तरह वो अभी मैंने आपको बताया है, हम इसको किस तरह याद करना है। अब्दुल मन्नान ये देखें, आपने इस तरह इसको ज़बानी याद करना है। मैं कल क्लास के अलावा आपसे सुनूंगा। सिफत नंबर 1 हमस, इसका माना है पस्ती या ज़ोफ। इसकी अदायगी के वक्त आवाज में ज़ोफ और पस्ती इतनी के सांस जारी रहे। ये सिर्फ फहसहु शख्सुन सकत में इन इस हरूफ का मजमुआ ये है। इसकी सिफत नंबर 2 इसकी ज़िद है जहर, इसका माना है बुलंदी और कुव्वत। अदायगी के वक्त आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी कि जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए। मजहूरा के सिवा तमाम हरूफ महमूसा हैं। सिफत नंबर 3 शिद्दत, सख्ती और कुव्वत। अदायगी के वक्त आवाज में सख्ती और कुव्वत इतनी कि आवाज रुक जाए। हरूफ शदीदा अजीदू का कतबता है। इसकी जिद का नाम है रिखावत। रिखावत का माना है नरमी, अब जिसका माना है आवाज में नरमी हो ताकि आवाज जारी रह सके। अच्छा, और एक सिफत है तवस्सुत, इसका नंबर नहीं है, यानी दरमियानी कैफियत। ना तो शिद्दत की तरह सख्ती की आवाज रुक जाए और ना रिखवत की तरह नरमी की आवाज जारी रहे। रिखवा ये इसके हरूफ लिन उमर 5 हैं। और मासवाए रिखवा और मुतवस्सिता के बाकी तमाम हरूफ रिखवा है। मासवाए शदीदा और मुतवस्सिता के बाकी तमाम हरूफ रिखवा है। अच्छा, अब आ गई सिफत नंबर ये है 5 इस्तेला। इस्तिलाह का तर्जमा है ऊपर की तरफ उठना, यानी जुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद हो ताकि हरूफ पुर पड़े जाएं। हरूफ को पुर पड़ने का तरीका क्या है कि जुबान की जड़ को तालू की तरफ उठाओ। और रूफ मुस्तालिया खुद सज़ातिन खिज़ हैं। इसकी जिद का नाम है इस्तिफाल। सिफत नंबर 6 इस्तिफाल। इस्तिफाल का माना है ऊपर की जानब ना उठना, जुबान की जड़ तालू की तरफ ना उठे बल्कि नीचे रहे ताकि हरूफ बारीक पड़े जाएं। हरूफ मुस्तालिया के सिवा तमाम हरूफ मुस्तफिला हैं, यानी ये 7 हरूफ निकाल दें तो बाकी 22 में सिर्फ इस्तिफाल पाई जाती है। आगे आ जाए सिफत नंबर 7 इतबाक, चपक जाना, यानी जुबान का दरमियान तालू से चपक जाए ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना पड़े जाएं, बहुत ज्यादा पुर पड़े जाएं, बहुत ज्यादा पुर पड़े जाएं। मुतबका सात जा ताजा 4 हरूफ मुतबका है। इसकी जिद का नाम है सिफत नंबर 8 इनफिताह। इनफिताह का माना है खुला रहना, यानी जुबान का दरमियान तालू से खुला रहे, खास जुबान की जड़ लगे या ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना हो। जुबान की जड़ लगे या ना लगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि इनफिताह में जुबान का दरमियान तालू से खुला रहे, खास जुबान की जड़ लग जाए ताकि हरूफ बहुत ज्यादा पुर ना हो। हरूफ मुतबका के सिवा तमाम हरूफ मुनफतिहा। सिफत नंबर 9 इज़लाक। इज़लाक का माना है आसानी और सहूलत। ये हरूफ जुबान और होंठों के किनारों से आसानी से अदा होते हैं और इसका मजमू है फर्र मिन लुब्बिन। ये इसको अच्छी तरह याद कर लें, ये लफ्ज है मिन, ये देखने में गलत लगता है, ये लगता है, यह है फर्र मिन लुब्बिन। इज़लाक ये बड़ी आसानी से फा और देखें फा बा मीम नून वाओ आसानी से अदा होते हैं। इसकी जिद का नाम है इस्मात। ये मीम है, हा नहीं है, इस्मात। इसका माना है मजबूती और जमाओ। ये हरूफ जमाओ से अदा करें। हरूफ मुस्लिका के सिवा सारे हरूफ मुस्मता हैं। मजबूती और जमा क्या है, जैसे देखें हा, देखिए ये मजबूती है ना, और बा आसानी से होंठों को नरमी के साथ रखा है और ये अदा हो गए हैं। तो ये थी सिफात मुतज़ादा। अब आइए हम सिफात गैर मुतज़ादा और सिफात गैर मुतज़ादा ये आपके सामने है।
देखिए ये नक्शा है आपके सामने, सिफात लाजिमा गैर मुतजादा। 7 आप पहले आपने जो पढ़ी हैं वो 10 सिफात थी, सिफात लाजिमा मुतजादा। वो क्या थी? हमस जहर, शिद्दत रिखवत, इस्तिला इस्तिफाद, और इसी तरह इतबाक इन्फिताह, इज़लाक इस्मात, और तवस्सुत थी उसकी शिद्दत और रिखवत का दरमियान। तो वो 10 आपने याद करनी है। पहले आपने सिफत का नाम बोलना है, वहां पर सिफत नंबर 1 हमस, लफ्जी माना वहां पे पस्ती और ज़ोफ। इसी तरह आगे अमल आएगा सिफात का और कौन से रूप पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं, ये हैं 7 सिफात जिनके अंदर आप देख रहे हैं कि ये हैं कलकला, मुशाबहत, तकरार, तफशी, सफ़ीर, इस्तितालत, लीन, गुन्ना। ठीक है, तो ये सिफात हैं 7। अच्छा, अब यहाँ पे कलकला की जिद कोई नहीं है, कलकला की जिद कोई नहीं है, मुशाबहत तकरार की जिद कोई नहीं है। क्यों? असल में ये थोड़े चंद हरफों में होता है ना, तो असल में जिद तो यहां पर भी है। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं। धूप की जिद है छाऊं, बाहर की जिद है, आसमान की जिद है जमीन, आग की जिद है पानी। ठीक है, लेकिन हवा की जिद क्या है? हवा की जिद है कि हवा का ना होना, लेकिन उस ना होने का नाम कोई नहीं है। इसी तरह कलकला 5 रूप में होगा, कुतुब जद्दीन, कलकला 5 रूप में होगा। अब जो बाकी 24 रूप हैं उनमें कलकला नहीं है, तो जिद तो हुई, लेकिन वहां पर उस जिद का नाम कोई नहीं, इसलिए उनको कह दिया जाता है गैर मुतजादा कि सिफा, यानी इस सिफत की जिद का नाम कोई नहीं है। जब वो सिफत अदा करेंगे तो उस जिन हरूफ में नहीं अदा करेंगे, जिद तो हुई, लेकिन वहां चूंकि जिद का नाम नहीं है लिहाजा कह दिया गया सिफात गैर मुतजादा। ये 7 हैं। सबसे पहले है कलकला। कलकला का माना है जुम्बश होना, कलकला माना है जुम्बश होना। अच्छा, ये कैसे इसकी आपको समझाया जाए? जैसे देखें, ये बाल को जमीन पे फेंका जाए तो बाल जमीन पर लगने की वजह बाद दोबारा ऊपर आता है, जब नीचे लगता है तो दोबारा वो ऊपर आता है बाल। इसी तरह ये बड़े लोहे को, एक लोहे को दूसरे लोहे के ऊपर मारा जाए तो वो भी उभरता है। यानी जो चीज उभरती है ना, नीचे लग के जो उभरती है, वो कलकला है। तो हम इसको इस तरह कहेंगे, आवाज में सख्ती की वजह से जुम्बश पैदा होकर आवाज बैक हो जाए, वापस आ जाए। देखें, अक अगर इसमें हम इसको हिलाएंगे नहीं तो कलकला नहीं पैदा होगा। मतलब अक तो नहीं पता चलेगा, अक आवाज बैक हुई है, वापस आई है। अद, अप, अब, अज, अद। इसी तरह है, जिस तरह गेंद को नीचे फेंका जाए तो वो उबर कर वापस आता है, इसी तरह ये आवाज जब मखरज में जाकर लगती है तो लगने के बाद ये फिर एक और जुम्बश सी पैदा होती है मखरज में, और फिर आवाज आती है, उस आवाज को कलकला कहते हैं। अक, अफ, ये 5 हरूफ हैं, हरूफ कलकला। और किसी हरफ में कलकला नहीं पैदा करना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो सूरह फातिहा शुरू करते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्दु, अल ये गलत है, अल गलत है, अम ये भी गलत है, अद ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल गलत है, रब्बिल अच्छा, लाम में कलकला। अक्सर ये हमारे हुफ्फाज और आम लोग जो हैं, ये लाम शुरू में जब हम हरफ मुतहर्रिक आ जाए, हमजा वगैरह आ जाए, तो अक्सर ये इसमें जुम्बश पैदा करते हैं। तो जुम्बश से बताकर कामिल सुकून को पैदा करना ये अदम कलकला है, और लाम में नहीं होना चाहिए। और जुम्बश पैदा करना और आवाज बैक हो, पलटे, आवाज में जुम्बश सी पैदा हो, ये कलकला है। और ये 5 रूप में है। ये सिफात गैर मुतजादा में हमने आपको सिफत नंबर 1 ये आपने पढ़ी है अभी।
अभी आगे चलिए, दूसरी सिफ्त है मुशाबहत तकरार। मुशाबहत तकरार, इसके ऊपर जरा गौर करें। एक है तकरार, एक है तकरार, एक है मुशाबहत तकरार। अच्छा, तकरार क्या है? किसी चीज का बार बार होना। ये सिर्फ रा में है। मैं रा में तकरार भी पैदा करता हूं और मुशाबहत तकरार भी पैदा करता हूं। अब दोनों में देखें क्या फर्क है। तकरार ये है ये तकरार है, ये तकरार है, ये नहीं है। ये हमें जरूरत नहीं है, इसकी मुशाबत पैदा करनी है। हल्का सा कप कपाहट, कप कपाना। एक है हिलना, जिसम हिलता है, एक है कप कपाना, हिलना और है और कप कपाना और है। तो इसको उन्होंने तकरार नहीं कहा, इसका याद इसको तकरीर कह लेते हैं। तकरीर, ये सर्फ वाले समझते हैं इसमें तस्गीर पाई गई है। या तो तकरीर है या हम इसको तकरार की मुशाबहत। मुशाबहत तकरार, लर्जना या कप कपाना। रा की अदायगी में जबान कप कपाए, इसमें राशा या लर्जा हो, सिर्फ रा में पाई जाती है। देखिए, खुसूसन जब रा के ऊपर शद हो और उसके ऊपर हम वक्फ करें तो ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। मुस्तमिर, मुस्तमिर, मिर, मिर, यह है मुस्तमिर। तकशाइर, तकशाइर, ये है वो। अर्रहमा, अर्रहमा, ये गलत है, ये तकरार है, इससे बचना है। तो मुशाबहत तकरार पैदा करनी है। अर्रहमा, निर, ये गलत है, निर्रही। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इससे आगे। आगे है तफशी। ये मुश्किल नहीं है, ये अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली को जब भगाना हो ना, या किसी चीज को, या हमारे ये पंजाब में अक्सर ऐसा भी होता है, किसी को अपनी तरफ दूर से आवाज ना देनी हो तो कहते हैं ऐसे हम करके बुलाते हैं। तो इसको अरबी में कहते हैं तफशी। आवाज मुंह में फैल कर निकलती है और ये आवाज सिर्फ शीन में पैदा होती है। ये हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है, अक्सर लोग हमारे ये आवाज पैदा करते हैं। सिर्फ चूंकि अब ये किताब में है और आपको ये समझाना है कि अगर कोई बंदा शीन में वो आवाज पैदा ना करे तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई इसमें सिफ्त तफशी पैदा करो। तफशी क्या है? ते और फेल निकाल देते, बाकी क्या रह जाता है? शी, ये इस आवाज का नाम है तफशी। आवाज मुंह में आवाज का मुंह में फैलना। अदायगी के वक्त आवाज मुंह में फैल जाए, सिफत सिर्फ शीन में पाई जाती है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। जी एक सवाल है, यहाँ एक सवाल है। जी जी बताइए। वो एक होता है ना, वो पढ़ते हैं और आँख ऊपर शाद होती है, जैसे और आँख ऊपर शाद होती है मुस्तकर, तो ये ठीक है? नहीं, पता क्या है, आगे वक्फ करते हैं साथ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि शद की मिकदार जज़म से आदी है। अच्छा, वहां पे जी जी वहां पर जमाव तो पैदा होगा और वहां पर आवाज जो है उसमें कपकपाहट भी होगी, लेकिन इतनी लंबी नहीं होगी। मुस्तमिर, मुस्तमिर, ये इतना लंबा नहीं होगी। मुस्तमिर, मुस्तमिर, तक़शाइर, समझे ना? इतनी लंबी नहीं, आवाज इतनी जारी नहीं रहेगी, क्योंकि शद की मिकदार जो है, ये जो मद्दे असली है उसका -1/8 है, यानी मद्दे असली का 8वां हिस्सा है शद की आवाज। मद्दे असली का 4था हिस्सा है जज्म की आवाज। मद्दे असली का दूसरा, माइनस मैं कह रहा हूं, यानी अगर 2 टुकड़े करें तो जबर जेर पेश की आवाज बनेगी मद्दे असली की। और अलिफ वाव या की आवाज जो है वो है कंप्लीट साउंड, पूरी आवाज, मद्दे असली तभी आवाज। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? जी चलिए आगे, अब आइए। जी जी आगे। हाँ, तो हमने 3 सिफ्तें पढ़ी हैं, कलकला, मुशाबहत तकरार, तफशी। अब आगे आइए, चौथी सिफ्त है, इसका नाम है सफीर। नाम याद रखिए, सीन के साथ नहीं। सीन के साथ तो सफीर वो हैं
जो पैगाम ले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जैसे कुर्रा हजरात पैगामात लेके जाते हैं, कुरान करीम का पैगाम लेके जाते हैं, तो वो कुरान के सफ़ीर हैं, और कुछ मुल्क के पैगामात वहाँ देते हैं, वो मुल्कों के सफ़ीर हैं। ठीक है ना। अल्लाह ताला आप सबको कुरान का सफ़ीर बनाए कि कुरान की आवाज़ को लेकर पूरी दुनिया में दस्त दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इस तरह आप जुल्मतों के अंदर कुरान की शमा को जाकर रोशन करके आप भी माशाअल्लाह सफ़ीर कुरान बने। तो यहाँ पे सीन के साथ सफ़ीर नहीं है, ये साद के साथ सफ़ीर है। और जब साद के साथ सफ़ीर होगा तो इसकी अब मतलब इसका माना है सीटी की आवाज़, विसल। उर्दू में कहते हैं सीटी, इंग्लिश में कहते हैं विसल, और अरबी में कहते हैं सफ़ीर। अदायगी के वक्त हरूफ में तेज सीटी पैदा हो, और वो सीटी क्या है, जा, सीन और साद में पाई जाती है। बाकी हरूफ को कई लोग जो हैं वो ये सा, जाल, वा में पैदा करते हैं। उन सा, जाल, वा को बचाना चाहिए इससे। अच्छा, किस में पैदा करनी है आपने? ये जा में। देखिए ये क्या है, ज़, ये ज़, और फिर सीन में, साद में, ये साद मोटा हो जाता है, सीन बारीक हो जाती है, जा में सख्ती है, जाल में सख्ती नहीं है। ये हरूफ सफ़ीर हैं। इन तीन हरूफ की सही होने का मायार ही सिफ्त सफ़ीर है। अगर जा में सफ़ीर अदा नहीं करें तो जा, जाल बन जाएगी। सीन में सफ़ीर अदा नहीं करेंगे तो सीन सा बन जाएगा, ता, सा। साद में सफ़ीर अदा नहीं करेंगे तो साद भी सा बन जाएगी। इसलिए इन तीनों हरूफ का दारो मदार ही सफ़ीर के ऊपर है। अगर सिफ्ते सफ़ीर अदा नहीं करेंगे तो जा, जाल से बदलेगी, सीन सा, सीन और साद सा से बदल जाएंगे। तो ये आपने सिफत पढ़ी है नंबर 4। अब आगे चलिए, सिफ्त इस्तितालत। ये इस्तितालत, इसका ये लफ्ज़ होता है ना तवील, तवालत, तवील कहते हैं लंबे को, इस्तितालत लंबाई, इम्तिदाद यानी मद, जारी रहना यानी दराजी चना, आवाज का जारी रहना। इम्तिदाद यानी आवाज दराज हो जाती है। वलौ, ये देखिए ज़ोए में आवाज लंबी नहीं है, इव वाला मुंह, अव, ज़ोए इतनी है, अव, और वाद अव, अव, ये है वाद। ठीक है। इसमें इसका यहाँ पे आप इतनी बात याद रखें कि वाद में आवाज जो है, इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी वक्त मैं आखिर में जाकर इस लफ्ज़ वाद के ऊपर तवील हासिल बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप इतनी बात याद रखें कि ये सिर्फ वाद की है। इसका माना क्या है? इस्तिताल सिफत गैर मुतदादा में सिफत नंबर 5 इस्तितालत, इम्तदाद माना है यानी दराजी चाहना, अदायगी के वक्त मखरज में तवालत तक अच्छा, मखरज की तवालत, इसके ऊपर गौर करें। तवालत किस तरह होगी कि देखें, इसका मखरज बड़ा लंबा है। ये नवाजिज 1, 3 तवाहिन, 1 ज़वाहिक, 5 दाढ़ों के बराबर हाफाए लिसान जब ऊपर मखरज के ऊपर जाकर तालू के ऊपर लगता है, मसूड़ों के करीब, ऊपर की दाढ़ों के मसूड़ों के साथ जब हाफाए लिसान लगता है तो एक आवाज सी, हवा सी खारिज होती है जिसमें आवाज भी होती है। एक हवा सी खारिज होती है जिसमें आवाज भी होती है, और वो वही इम्तिदाद है। वलौ, ये वलौ, ये है ये है तवालत। एक वहां पे जब जुबान लगती है तो आवाज, हवा भी उसके अंदर होती है, तो जुबान क्योंकि नरम होती है और वो जगह जो है वो सख्त होती है, तो जब तक जुबान पूरी वहां पर टिकेगी नहीं उस वक्त तक जो आवाज है उसके अंदर इम्तिदाद जो है वो नजर आएगा। इसकी अब आप अलग-अलग अहबाब इंफरादी तौर पर मेरे साथ ऑनलाइन होकर ये इसकी मशक करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी मशक कराऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये सिफत आपने पढ़ ली है 5वीं।
आगे आइए सिफत नंबर 6 लीन। ये आपने सिफत, ये लीन आपने पढ़ी है पहले। लीन का माना है नरम आवाज, लीन का माना है मद्दा में सख्ती होती है, तो लीन में नरम है। देखें सूर को, वो मैंने होंठों को कसा हुआ है, नून कस के पड़ा है वाव को और आवाज जारी है, कुछ रुकावट नहीं आई। लेकिन खौफ में अगर होंठों को कसेंगे खौ, तो आवाज बंद हो जाएगी। तो आवाज को जारी रखने के लिए इसको नरम करना पड़ेगा। लीन कहते हैं नरम आवाज को। और लीन कितने हरफ हैं? वाव और या जब इनसे पहले जबर हो, वाव से पहले पेश होगी तो वाव मद्दा बन जाएगी, लीन नहीं होगी। वाव से पहले जेर नहीं आ सकती, या से पहले जेर आएगी तो या मद्दा बनेगी, ये लीन नहीं बनेगी। या से पहले जबर होगी तो या लीन होगी। यानी वाव और या का बिफोर मा कबल मफ्तू हो तो ये दो हरफे लीन होंगे। यानी यूं समझ लीजिए कि वाव और या की एक मखसूस शक्ल, एक मखसूस आवाज का नाम है लीन, मखसूस आवाज का नाम है मद्दा। यानी वाव की जो 3 आवाजें हैं ना, एक है वाव मद्दा, एक है वाव लीन, एक है वाव मजहूर। या की भी 3 आवाजें हैं, एक है या मद्दा, एक है या लीन, एक है या मजहूर। तो हमने आपको मद्दा भी समझाई है, या मजहूल भी समझाई है, और जो हमने कुरान में इस्तेमाल नहीं करनी। और ये या लीन भी आपको आज समझाया है कि लीन का माना है नरम आवाज, अदायगी में आवाज नरम रहे ताकि कोई मद करना चाहे तो कर सके। ये कौन से हरूफ हैं? वाव या साकिन माकबल मफ्तू। ठीक है जी। अब आइए आज की आखिरी सिफ्त जो है वो है गुन्ना, नाक की आवाज। अच्छा, गुन्ने की 2 किस्में हैं। एक गुन्ना है कि मखरज में से आवाज निकलती है नून और मीम में। जब मसलन हम कहते हैं मैं यकूलू, मीम के ऊपर जबर पड़ी है मैं, तो आप देखें मीम जबर मा, तो नाक में उस वक्त भी आवाज आ गई है, तो वहां पर आवाज में देर नहीं लगी, फौरन बंद हो गई है। यानी आन की आन नाक में आवाज गई है, तो इसको कहते हैं गुन्ना आनी। लेकिन अगर मीम के ऊपर शद आ जाए तो नाक में आवाज गई है लेकिन एक अलिफ की मिकदार में, इसको कहते हैं गुन्ना जमानी। यहां से हम आपको गुन्ना जमानी, ये सिर्फ गुन्ना जमानी है, यानी नाक की आवाज, इसकी मिकदार कितनी है? 1 अलिफ। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक की आवाज को, इसकी मिकदार कितनी है? 1 अलिफ। ये कब होती है? जब नून और मीम में इख्फा हो, एक शक्ल। नंबर 2, इदगाम गुन्ने वाला हो रहा हो, दूसरी शक्ल। नंबर 3, वो मीम जो नून से बदल के आई होती है, इक़लाब। ठीक है, जैसे मिम बाद। इन तीनों में हालतों में 1 अलिफ की मिकदार में नाक में आवाज का जारी रखना होता है। हालत इख्फा और इदगाम मअल गुन्ना, इस तरह याद करें। हालत इख्फा और इदगाम मअल गुन्ना और इक़लाब में आवाज का 1 अलिफ की मिकदार में नाक में जारी रहना। अच्छा, ये 5 शक्लें बनती हैं। नून मीम मख्फी, यानी नून और मीम में इख्फा हो रहा हो। नून में इख्फा कब होता है? ये आकर आपको नून के जब 4 हाल आएंगे तो वहां पे बताएंगे। मीम में इख्फा कब होता है? जब मीम के 3 हाल आएंगे वहां पे बताएंगे। मीम मुनक़लिबा, जब नून के बाद बा आ जाए तो मीम को नून से बदलते हैं तो उसे मीम मुनक़लिबा कहते हैं। नून ये अच्छा, नून से साकिन और तनवीन, जबर के साथ तनवीन, जेर के साथ तनवीन, पेश के साथ, ये नून साकिन और नून तनवीन, इन चारों के, यानी नून साकिन, नून 2 जबर की तनवीन, 2 जेर की तनवीन, 2 पेश की तनवीन, इनके एक जैसे इनके जो अहकाम हैं एक जैसे हैं। यहाँ से मुराद ये है। तो इदगाम नाक़िस किसे कहते हैं? कि जब नून का वाव में इदगाम करें, या में इदगाम करें तो वहां पे गुन्ना होता है। मैं यकूल,
मिवाल, तो ये इदगाम नाक़िस है। और मिर रब्बिहिम, नून का रा में इदगाम किया है तो इदगाम मुकम्मल है। तो ये सारी तफसील अगर आपको आगे जाके बताई जाएगी और इंशाअल्लाह समझ भी आएगी। यहाँ पे आप याद इस तरह कर लें कि सिफ्त नंबर 7 गैर मुतज़ादा में से गुन्ना, नाकिवाज, हालत इख्फा, यानी यहाँ लफ्ज़ बोले यानी हालत इख्फा और इदगाम अल गुन्ना और इक़लाब में आवाज़ का एक अलिफ की मिक़दार में नाक में जारी रहना कहाँ पाई जाएगी? नून मीम मख्फी मीम मुनक़लिबा इदगाम नाक़िस। ये ना भी अभी ये याद करें तो ये आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी। तो ये तो 7 सिफ्तें हो गई। यहाँ एक नोट लिखा है या पढ़ लें, दीगर कुतब में गैर मुतज़ादा में एक सिफ्त इनहिराफ पाई गई है जो लाम और रा में पाई जाती है। तो ये सिफ्त किसकी ज़रूरत नहीं है, किताबों में मिलेगी। मैं आपको जाके आगे समझाऊंगा, किताबों में आपको मिलेगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सिफत पैदा नहीं करनी। मतलब यह है कि इस सिफ्त से बचना चाहिए। वो क्या बयान किया है कुरान ने कि लाम को जब अदा करें ना तो खामखा ज़बान रा के मखरज की तरफ जाती है, और जब रा को अदा करें तो ज़बान लाम के मखरज की तरफ जाती है। इसी तरह जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो रोटी को लोटी कहता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता मैंने कैसे अदा करना है, तो ज़बान खुद उधर चली जाती है। तो मकसद ये है कि इनहिराफ, ज़बान को मुनहरिफ नहीं करना लाम की अदायगी में रा की तरफ और रा की अदायगी में लाम की तरफ। तो ये हमने आज आपको सिफाते गैर मुतज़ादा आपको अभी हमने बताई हैं। तो इसमें ये याद रखें कि माशाअल्लाह ये है वो, ये 7 सिफात हैं, तो 17 सिफात हो गई। 10 सिफात मुतज़ादा और 7 सिफात गैर मुतज़ादा। तो ये आप कल हम इसका तकरार करेंगे, आपको याद भी होगा। तकरार किस तरह करेंगे? हम अलिफ से लेकर या तक पूरे हरूफ को इनके ऊपर वारद करेंगे। मसलन मैं कहूँगा हाँ जी जीम का मखरज बयान करें, आप कहेंगे जीम मखरज नंबर फलां है, ज़बान का दरमियान जब ऊपर तालु के दरमियान से लगे, इनको हरूफ शजरिया कहते हैं। ये मखरज आ गया। हाँ जी जीम में सिफात मुतज़ादा की कौन कौन सी सिफ्त पाई जाती है? आप कहेंगे जी हमस में तो नहीं है, फास्तहु शख्सन सकत, इसमें जहर है। शिद्दत में है, अजिदु का कतब था, इसमें शिद्दत है। इस्तिला में खुस्सज़ग़तिन क़िज़ नहीं है, इसमें इस्तिफ़ाल है। इतबाक साज़ा नहीं है, इसमें इन्फ़िताह है। इज़लाक फर्रा मिन लुब्बिन नहीं है, इसमें इस्मात है। हाँ जी गैर मुतज़ादा में कौन सी है? तो आप कहेंगे जी गैर मुतज़ादा में सिफ्ते कलखला है जी। अच्छा जी ये हमारा इससे आपको पता चल। इसके बाद हम बोलेंगे हाँ जी आइन का मखरज बयान करें। आप कहेंगे जी मखरज नंबर 3 वस्ते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, ये हरूफ हलक, ये हलक से अदा होता है और ये इसको हरूफ हलकी कहते हैं। और सिफात लाजिमा मुतज़ादा में कौन कौन सी सिफ्त है? तो आप कहेंगे फहस्सहु शख्सन सकत, हमस नहीं है, इसमें जहर है। अजीदु का कतबता नहीं है, इसमें तवस्सुत है। लिन उमर खुस्सज़ग़तिन क़िज़ में भी नहीं है, इसमें इस्तिफ़ाल है। इतबाक में भी नहीं है, इसमें इन्फ़िताह है। फर्र इज़लाक में भी नहीं है, इसमें इस्मात है। मुशाबहत तकरार में कितनी है जी? हाँ जी मुशाबहत तकरार में आइन कोई भी नहीं है। नहीं ये मुशाबहत सिफात गैर मुतज़ादा में से कौन सी है जी? सिफात गैर मुतज़ादा में कौन सी है? तो सिफात लाज़िमा में आइन में 5 सिफ्तें पाई गई। तो हर हरफ में 29 हरूफ में हर हरफ में कम अज कम 5 सिफ्तें जरूर पाई जाएंगी। और इन 5 सिफ्तों में जो पाई जाएंगी इनमें हमने देखना है हरफ कवी कौन सा है, ज़ईफ कौन सा है। अब देखें 10 सिफात जो है ना उनमें जहर कवी है, हमस ज़ईफ है, शिद्दत कवी है, रिखवत ज़ईफ है, इस्तिला कवी है, इस्तिफाल ज़ईफ है, इतबाक कवी है, इन्फिताह ज़ईफ है, इज़लाक ज़ईफ है, इस्मात कवी है। तो जिस हरफ में सारी सिफ्तें कवी होंगी वो हरफ होगा बहुत ज्यादा कवी, और जिसमें कम कवी होंगी वो यानी ज़ईफ कम होंगी कवी ज्यादा होंगी वो हरफ कवी होगा, बहुत ज्यादा कवी नहीं होगा। और जिस हरफ में बराबर होंगी वो मुतवस्सित होगा, और जिसमें ज़ईफ होंगी ज्यादा वो ज़ईफ होगा, और जिसमें बहुत ज्यादा ज़ईफ होंगी वो बहुत ज्यादा ज़ईफ होगा। तो ये आगे जाकर हम
ये आपसे पूछेंगे कि भाई बताएं हरूफ की कैफियत क्या है, वो हरूफ निकाल के दिखाओ जो अक़वा हैं, वो हरूफ निकाल कर दिखाओ जो कवी हैं, वो हरूफ निकाल कर दिखाओ जो मुतवस्सित हैं, वो हरूफ निकाल कर दिखाओ जो ज़ईफ़ हैं, वो हरूफ निकाल कर दिखाओ जो अज़ाफ है। तो हरूफ की 5 किस्में होंगी, अक़वा, कवी, मुतवस्सित, ज़ईफ़ और अज़ाफ। तो इंशाअल्लाह जो जो आप आगे चलते जाएंगे ये मसाइल आपके लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे। आपके लिए इतनी बात ज़रूरी है कि जो लेसन आपके पास आ रहे हैं इनको बार बार जो पढ़ा होता है आपने, इनको बार बार पढ़ते रहें, पीछे से भी पढ़ते रहें और उसके अलावा याद भी करते रहें और एक दूसरे के साथ तकरार भी करते रहें। कल हम इंशाअल्लाह पिछले सबकों का तकरार करेंगे, हम खारिज से शुरू करेंगे, सिफात लाज़िमा मुतज़ादा, सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके आएँ। तो आइए अब हम मश्क करते हैं। कामरान साहब आप सूरतुल क़ारिआ की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون क्या पढ़ रहे हो? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش जी فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية। माशाअल्लाह, खूबसूरत करके पढ़े जरा। وأما من خفت موازينه فأمه هاوية माशाअल्लाह, وما أدراك ما هي نار حامية। हाँ साफ नहीं है, फिर पढ़िए। वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। हाँ जी। وما أدراك ما هي نار حامية। जी आदिल पढ़ेंगे, उसके बाद हाफिज ज़ीशान साहब पढ़ेंगे अबू ज़बी से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। में आपके होंठ गोल हुए हैं, ओपन करें होंठ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. माशाअल्लाह। الله
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. हाँ, ये तफशी है जी. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ठीक है. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ठीक है. وما أدراك ما هي نار حامية. जी माशाल्लाह. जीशान साहब पढ़ेंगे, उसके बाद अब्दुल मन्नान पढ़ेंगे. जी जीशान पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप हदर में पढ़ें, थोड़ा सा तेज, जैसे अरब लोग पढ़ते हैं. चलो जैसे मर्जी पढ़ें, दरमियान. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. फिर पढ़े माशाल्लाह. يوم يكون निशान साहब फिर पढ़ें. الناس. फिर पढ़ें. आपकी जो अलकारिया की रा है ना, ये पुर हो रही है, ये बारीक है. रा के नीचे जेर है ना. अलकारिअतु मल कारिअतु वमा अदराक मल कारिअह. फिर पढ़िए. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ठीक है. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. نار حام. حا को साफ करें. نار حامية. نار حامية. نار حامية. माशाअल्लाह. ठीक है. अब्दुल मन्नान पढ़ेंगे, उसके बाद अब्दुल रहमान और फिर अली जमील. जी अब्दुल मन्नान. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मश्क करें खूबसूरत करके. अलकारिया. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. جی فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جی عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنا اوپن کرو اپنا کیمرہ. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. جی علی جمیل پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ٹھیک ہے. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ٹھیک ہے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش جی. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية جی. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ٹھیک ہے. وما أدراك ما هي نار حامية جی. عبد المنان آپ پڑھے حجر پہلے اس بارے میں سے. یا ایھا الناس اعبدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء. جب آپ نے ما آ کے ٹھہرے ہیں نا، تو یہ آ کی آواز ایک الف کی مقدار میں، جیسے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ جی پڑھیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. یہ جو شہداء کی مد گزری ہے نا، یہ ذرا اس میں توسط ہے، تھوڑی سی لمبی کریں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ دال میں قلقلہ ہے، نرم کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
پھر پڑھو فإن لم تفعلوا ودعو پھر پڑھو ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. جی کامران صاحب آپ پڑھیں، حیدر پڑھیں. چلا گیا کامران کا سب. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلو جی آج کا سبق حامد آپ نے نہیں پڑھا؟ اچھا حامد ہے، حامد اور حافظ رمضان. حامد ہے تو وہ پڑھے سورۃ القاریعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه جی فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. حافظ رمضان ہیں، آریہ حافظ رمضان ہیں. نہیں کہا سب. چلو آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن فہمنے کی، پڑھنے کی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.